व्रतसूत्र। अहिंसा सत्यं च तेणगं च तत्तोयबम्भम् अपरिग्रहं च परिवज्या पञ्चमहव्ययानि चरिज्य धम्मं जिनदेशीयं वियुः। निःसल्लस्यैव पुनो महव्वदायिं हवन्ति सव्वायिं वदमुहं मदितिहिन्दु निदानमिच्छत्त मायाहिम्। अगणियजो मुखसुहं कुणैनियाणम् असारसुहेयं शोकाय मणिकैवं वैरुल्यमणिं पणासेहि। कुलजोनि जीवमग्गण ठानाय सुजानियून जीवाणम् तस्सारं भणियत्तण परिणामो होई परमवदम्। सव्येसिमासमाणं हृदयं गभ्भो वसव्वसत्थाणं सव्येसिं वदगुणाणं पिण्डो सारो अहिंसाहु। अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जैवा भया हिंसकं नमुसं भूया नो वियन्नं वया वये। गामे वा नयरे वा रण्ये वापेत्स्यून परमर्थं जो मुञ्चति गहनभावं तिर्यवदं होरि तस्यैव। चित्तमन्तमचित्तं वा अप्पं वा जैवा बहुं दन्तसोहणमित्तम्पि उग्गहंसि अजाय्या। अयि भूमिं न गच्छेज्जा गोयरग्गगौणी कुलस्य भूमिं जानित्ता मियं भूमि परक्कमे। मूलमेय महम्मस्स महादोष समुच्चयं तम्मा मेहुण संसर्गिं निगन्था वज्जयन्तिणम्। माधुसुधा भगिनी विय दक्षुनिथित्यं च परिरुवम् इत्थिकहादिनियत्ति तिलोय पुंजं हवे बंभम्। सव्येसिं गन्थाणं तागो निरवेक्ष भावना पूवम् पंचमवदमिति भणिदं चारित्रभरं वहं तस्य। गाथा 376। किं किचनतितकम् अपुनर्भवकानि कामिनोददेहेवि संगति जिनवरिंदा निपडिकम्
सत्यमुद्दिष्टा गाथा 377 अपडिकुटठौपदी अपत्थ निजम् असंजत जनेहिम् मुच्छादि जननरहितम् गेनुतु समनो जति विअपम् गाथा 378 आहारेव विहारे देशं कालं समं खमं उवधिम् जानीता ते समणो वट्टदी जदि अपलेवीसो गाथा 379 नसो परिग्रहो उत्तो नायपुत्ते न तायिणा मुच्छा परिग्रहो युक्तो इवुत्तम महेशिना गाथा 380 सन्निहिचन कुवेजा लेवमायाए संजय पक्षिपतम समादाय निरवेको परिवय गाथा 381 संतार से जा सणभत्त पाणे अपि क्षया अलाभे विसन्ते एवपमान भीतो सएजा संतोष पाहन नरे सपूजो गाथा 382 अथम गयेयमिम आइचे पुरुत्था अनुगये आहारमायं सवं मनसा वीणपथये गाथा 383 संति में सहुमा पाणा तसा अदुवथावरा जाइम राओ अपासंतो कह में सनियं चरे समण सुत्तम सूत्र 25 व्रत सूत्र the precepts on vows English rendering Sutra 364 A wise monk, after adopting the 5 great vows of non-violence, truthfulness, non-stealing, celibacy, and non-possessiveness, should practice
the religion preached by the Jina. Gatha 365. A monk who is free from the thorns of character, that is Shalya, really observes 5 great vows. The vows become ineffective due to 3 thorns of character, that is desire for worldly return for one's good acts, wrong faith, and deceit. Gatha 366. He who harbors desire for worthless worldly pleasures and disregard for bliss of emancipation is like a person who destroys a real gem for a glittering piece of glass. Gatha 367. Mental state of the form of refinement from killing living beings after having knowledge of them in respect of their species of birth, place of birth, peculiarities, and that is the Margasthana, that is called the first vows of non-killing. Gatha 368. Ahimsa is the heart of all stages of life, the core of all sacred texts, and the sum, pinda, and substance, sara, of all the vows and virtues. Gatha 369. One should not speak or excite others to speak harmful, false words, either in the interest of oneself or of another through anger or fear. Gatha 370. He who desists from a desire to take anything belonging to others, on seeing it lying in a village or a town or forest, observes the third vow of non-stealing. Gatha 371. Nothing, whether animate or inanimate, whether cheap or dear, nay, not even a tooth-brushing piece of stick, is to be taken without being asked for while staying at a place fixed for residence. Gatha 372. A monk set out on begging tour should not go beyond the prescribed limits of land. Thus, having prior information about the families where it is possible
for the monk to beg for alms, he should wander around in a limited area of land. Gatha 373. Since sexual intercourse is the root of all irreligiosity and is of the form of massive accumulation of great defects, the monks invariably refrains therefrom. Gatha 374. When you come across the three forms of women, see in them the reflections of a mother, a daughter, and a sister according to their age, and refrain from telling the stories about women. Celibacy becomes worthy of veneration in all the three worlds. Gatha 375. The fifth great woe for monks who are the followers of the right conduct is renunciation of attachments for all things with a dispassionate mind. Gatha 376. What is the use of further argument to those who do not desire to be reborn? The Supreme Jinnah has advised that they should not have attachment even for their body and should refrain from beautifying their bodies. Gatha 377. A monk can keep only such things which are necessary for the observance of vratas and are not desired by worldly people and are incapable of creating any attachment. Anything that may create even a slight attachment is unacceptable to a monk. Gatha 378. If in connection with his eating and touring, a monk acts taking into consideration the place, time, needed labor, his own capacity, requisite implements, there would be little bondage of karmas. Gatha 379. Jnataputra, Bhagwan Mahavira, has said that an object itself is not possessiveness. What that great saint has said is that attachment to an object is possessiveness. Gatha 380. A monk should not collect anything, not even as little as a particle of food sticking to his alms bowls, as a bird flies away only with its wings, so he should
wander alone without having any means. Gatha 381. Even when blankets, beds, seats, food, and drink are available in plenty, a monk who desires only a little and remains self-contented is worthy of adoration. Gatha 382. A monk should not desire, even in his mind, for food after sunset and before sunrise. Gatha 383. There are innumerable suitable living beings, mobile as well as immobile, which are invisible in night. How can a monk move around for food at such a time? Samana Suttam, Sutra 25, Vrata Sutra, Hindi rendering, Gatha 364. Ahimsa, Satya, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों को स्वीकार करके विद्वान मुनि जिनोपदिष्ट धर्म का आचरण करें। गाथा 365। निश्चल्य व्रति के ही ये सब महाव्रत होते हैं, क्योंकि निदान, मिथ्यात्व और माया इन 3 शल्यों से व्रतों का घात होता है। गाथा 366। जो व्रति मोक्ष सुख की उपेक्षा या अवगणन करके परभव में असार सुख की प्राप्ति के लिए निदान या अभिलाषा करता है, वह कांच के टुकड़े के लिए वैडूर्य मणि को गंवाता है। गाथा 367। कुल, योनि, जीवस्थान, मार्गनास्थान आदि में जीवों को जानकर उनसे संबंधित आरंभ से निवृत्ति रूप आभ्यंतर परिणाम प्रथम अहिंसा व्रत है। गाथा 368। अहिंसा सब आश्रमों का हृदय, सब शास्त्रों का रहस्य तथा सब व्रतों और गुणों का पिंडभूत सार है। गाथा 369। स्वयं अपने लिए या दूसरों के लिए क्रोधादि या भय आदि के वश होकर हिंसात्मक असत्य वचन न तो स्वयं बोलना चाहिए और न दूसरों से बुलवाना चाहिए। यह दूसरा सत्यव्रत है। गाथा 370। ग्राम, नगर अथवा अरण्य में दूसरे की वस्तु को देखकर
उसे ग्रहण करने का भाव त्याग देने वाले साधु के तीसरा आचर्य व्रत होता है। गाथा 371 सचेतन अथवा अचेतन, अल्प अथवा बहुत, यहाँ तक कि दांत साफ करने की सीख तक भी साधु बिना दिए ग्रहण नहीं करते। गाथा 372 गोचरी के लिए जाने वाले मुनि को वर्जित भूमि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुल की भूमि को जानकर मित भूमि तक ही जाना चाहिए। गाथा 373 मैथुन संसर्ग अधर्म का मूल है, महान दोषों का समूह है, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रती निर्ग्रंथ साधु मैथुन सेवन का सर्वथा त्याग करते हैं। गाथा 374 वृद्धा, बालिका और युवती स्त्री के इन तीन प्रतिरूपों को देखकर उन्हें माता, पुत्री और बहन के समान मानना तथा स्त्री कथा से निवृत्त होना चौथा ब्रह्मचर्य व्रत है। यह ब्रह्मचर्य तीनों लोकों में पूज्य है। गाथा 375 निरपेक्ष भावना पूर्वक चारित्र का भार वहन करने वाले साधु का बाह्याभ्यंतर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना पांचवा परिग्रह त्याग नामक महाव्रत कहा जाता है। गाथा 376 जब भगवान अरिहंत देव ने मोक्षाभिलाषी को शरीर भी परिग्रह है कहकर देह की उपेक्षा करने का उपदेश दिया है, तब अन्य परिग्रह की तो बात ही क्या है। गाथा 377 फिर भी जो अनिवार्य है असंयमी जनों द्वारा अप्रार्थनीय है, ममत्व आदि पैदा करने वाली नहीं है, ऐसी वस्तु ही साधु के लिए उपादेय है। इससे विपरीत अल्पतम परिग्रह भी उसके लिए ग्राह्य नहीं है। गाथा 378 आहार अथवा विहार में देश, काल, श्रम, अपनी सामर्थ्य तथा उपाधि को जानकर ब्राह्मण आदि बरतता है तो वह अल्पलेपी होता है, अर्थात उससे अल्प ही बंध होता है। गाथा 379 ज्ञातपुत्र भगवान महावीर ने वस्तुगत परिग्रह को परिग्रह नहीं कहा, उन महर्षि ने मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। गाथा 380
साधु लेश मात्र भी संग्रह न करे, पक्षी की तरह संग्रह से निरपेक्ष रहते हुए केवल संयमोपकरण के साथ विचरण करें। गाथा 381। संस्कारक शैया, आसन और आहार का अतिलाभ होने पर भी जो अल्प इच्छा रखते हुए अल्प से अपने को संतुष्ट रखता है, अधिक ग्रहण नहीं करता, वह संतोष में ही प्रधान रूप से अनुरक्त रहने वाला साधु पूज्य है। गाथा 382। संपूर्ण परिग्रह से रहित समरसी साधु को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व किसी भी प्रकार के आहार आदि की इच्छा मन में नहीं लानी चाहिए। गाथा 383। इस धरती पर ऐसे त्रस और स्थावर सूक्ष्म जीव सदैव व्याप्त रहते हैं जो रात्रि के अंधकार में दिखाई नहीं पड़ते। अतः ऐसे समय में साधु के द्वारा आहार की शुद्ध गवेषणा कैसे हो सकती है? श्रमण सुत्तम सूत्र 25 व्रत सूत्र संस्कृत रेंडरिंग सूत्र 364 अहिंसा सत्यम चास्तेनकं च तच्चा ब्रह्म परिग्रहं च प्रतिपद्य पंच महाव्रतानि चरति धर्म जिनदेशितं विदः। गाथा 365। निश्चल्य सैव पुनः महाव्रतानि भवन्ति सर्वाणि व्रतमुपहन्यते तिसृभिस्तु निदानमित्यत्वमायाभिः। गाथा 366। अगणयित्वा यो मोक्ष सुखं करोति निदानमसार सुख हेतोः स काञ्चमणिकृते वैडूर्यमणिं प्रणाशयति। गाथा 367। कुलयोनि जीवमार्गणा स्थानादिषु ज्ञात्वा जीवाणां तस्यारम्भनिर्वतन परिणामो भवति प्रथमव्रतम्। गाथा 368। सर्वशामाश्रमाणां हृदयं गर्भो वा सर्वशास्त्राणां सर्वेषां व्रतगुणानां पिण्डः सारः अहिंसा हि। गाथा 369।
आत्मार्थं परार्थं वा क्रोधाद्वायति वा भयात् हिंसकं नु मृषा ब्रूयात् नाप्यन्नं यदापयेत्। गाथा 370। ग्रामे वा नगरे वा अरण्ये वा प्रेक्षित्वा परमार्थम् यो मुच्यति ग्रहणभावम् तृतीयव्रतं भवति तस्यैव। गाथा 371। चित् वदचित् वद्वा अल्पं वा यदि वा बहु दन्तशोधनमात्रमपि अवग्रहे अय्याचित्वा। गाथा 372। अति भूमि न गच्छेत् गोचराग्रगतो मुनिः कूलस्य भूमि ज्ञात्वा मितां भूमि पराक्रमे। गाथा 373। मूलम् एतत् अधर्मस्य महादोषसमुच्चयम् तस्मात् मैथुनसंसर्गम् निर्ग्रन्था वर्जयन्तिनम्। गाथा 374। मातृसूता भगिनीमिव च दृष्ट्वा स्त्रीत्तिकं च प्रतिरूपम् स्त्रीकथादिनिवृत्ति स्त्रीलोकपूज्यं भवेत् ब्रह्मा। गाथा 375। सर्वेषां ग्रन्थानां त्यागो निरपेक्ष भावना पूर्वम् पंचमव्रतमिति भणितं चारित्र्यभरं वहतः। गाथा 376। किं किंचनमिति तर्कः अपुनर्भवकामिनोऽथ देहेऽपि संग इति जिनवरेन्द्रः निष्प्रतिकर्मत्वम् उदिष्टवन्तः। गाथा 377। अप्रतिकृष्टम् उपधि पार्श्वनीयं संयतजनैः मूर्च्छादि जननरहितं गृह्णातु श्रमणो यद्यप्यल्पम्। गाथा 378। आहारे वा विहारे देशं कालं श्रमं क्षमं उपधिं ज्ञात्वा तान् श्रमणः वर्तते यदि अल्पलेपी सः।
गाथा 379 न सः परिग्रह उक्तो ज्ञातपुत्रेण तायिना मूर्छा परिग्रह उक्तः यदि उक्तं महर्षिणा। गाथा 380 सन्निधिं च न कुर्वीत लेपमात्राया संयतः पक्षिपत्रं समादाय निरपेक्षा परिव्रजेत्। गाथा 381 संस्तारकस्य यासन भक्तपानानि अल्पेच्छता अतिलाभेऽपि सति एवमात्ममानमभितोपयति संतोषप्राधान्यरतः स पूज्यः। गाथा 382 अस्तगतेम् आदित्ये पुरस्ताचानुद्गते आहारमादिकं सर्वं मनसापि न प्रवर्तेत्। गाथा 383 सन्ति इमे सूक्ष्मः प्राणिनः त्रसा अथवा स्थावरः यान् रात्रावपश्यन् कथम् एष नियं चरेत्।